Hello students, let's continue our study, and this is the fourth part of the last lesson 1 of class 12th English, written by Alphonse Daudet. So let's continue. They looked like little flecks floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our heads. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. So इसका क्या मतलब हुआ? What is the meaning of all this? ये फ्रेंच बैठा हुआ है और क्लासरूम में सभी बच्चे कुछ लिख रहे हैं अपनी कॉपियों में, और वो कापियाँ एमएमएल ने नई डिस्ट्रीब्यूट की थी जिनमें उन्होंने अच्छी राइटिंग में फ्रांस अल्सेक लिखा था, और वो कापियाँ छोटे छोटे झंडे की तरह लग रही थी, जैसे कि जो झंडे हर जगह लहरा रहे हो क्लासरूम में. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ वर डेस्क, तो अपने डेस्क पे रॉड से लटकी हुई कापियाँ. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो कितना सब कुछ शांत था उस दिन, और हर कोई कैसे काम में लगा हुआ था, लिखने में लगा हुआ था. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. तो केवल जो आवाज़ आ रही थी वह इतनी ही आवाज़ आ रही थी कि वो पेन के स्क्रैचिंग की आवाज़ पेपर पे थी, वही बार आ रही थी. एक बार क्या हुआ उसी दौरान क्लास में कि कुछ बीटल्स, कुछ पतंगे, कुछ टिड्डियाँ अंदर घुस आईं उड़ते हुए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि फिश हुक्स के शेप्स बना रहे थे अपनी कॉपी में, आधा गोला पूरा गोला ये सब बना रहे थे. लर्निंग वो राइटिंग सीख रहे थे शुरुआती स्टेज की, जैसे कि वो फिश हुक्स बनाना भी फ्रेंच सीखना हो. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, तो क्लासरूम की छत पे कुछ कबूतर धीरे धीरे आवाज़ कर रहे थे, कू कू कर रहे थे. और फ्रेंच ने सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि कबूतरों को भी वह अधिकारी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे, जर्मन भाषा में गाने को मजबूर कर देंगे. क्या कबूतरों को भी भाषा बदलनी पड़ेगी? Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair. फ्रेंच ने जब सिर उठा के देखा तो he saw that Hamel is sitting on his chair. He is looking at everything and he is trying to remember everything how it was when he was leaving the school. So he wanted to fix in his mind just how everything looked in his little school room. Fancy, you can imagine how sorry he was, how emotional he might be when he was leaving this school after 40 years of his service. 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से वह इसी स्कूल में इसी जगह पर पढ़ाते रहे हैं, और उनका गार्डन विंडो से बाहर दिखता है और उनकी क्लास सामने है. नेक्स्ट पेज देखिए. जस्ट लाइक दैट only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to
leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो इस तरह से only the desk and benches had been borne smooth. तो 40 सालों से अपने क्लासरूम को इसी तरह से वो देख रहे थे, और विंडो के बाहर भी अपने गार्डन को इसी तरह से वो देख रहे थे कि 40 साल से वो इसी तरह से था। और अब लेकिन क्या अंतर आ गया था? इतना अंतर आ गया था कि बेंच और डेस्क जो थी वो कुछ स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी, उनकी सरफेस जो पहले रफ हुआ करती थी अब ज़्यादा स्मूथ थी, और जो वॉलनट ट्रीज गार्डन में थे वो ज़्यादा ऊंचे हो गए थे। 40 साल पहले वो छोटे छोटे रहे होंगे और अब बड़े हो गए हैं। एंड द हॉपबाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, तो हॉपबाइन जो बेल उन्होंने खुद ही लगाई थी वह विंडोज़ से लिपट करके रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, तो ये सारा कुछ जो उन्होंने सेटअप बनाया और उसमें अपने आप को समायोजित किया, इस सब को छोड़ के जाना उनके लिए कितना हृदय विदारक रहा होगा, हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और अब वो क्लासरूम में बैठे हैं और क्लासरूम के ऊपर के दूसरी मंजिल पर छत पे जो कमरा है उसमें उनकी सिस्टर कुछ ट्रंक्स को पैक कर रही हैं, मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको यह देश छोड़ के चले जाना है, यह जगह छोड़ के चले जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. तो टीचर का यद्यपि ये आखिरी दिन था, दो इट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज करियर हियर, सर्विस हियर इन दिस विलेज, इन दिस डिस्ट्रिक्ट, स्टिल ही हैड द करेज एंड पेशेंस टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तो हर किसी बच्चे से उन्होंने लेसन सुना आखिरी तक, और उसके बाद में राइटिंग की जो एक्सरसाइज जब पूरी हो गई तो उसके बाद हिस्ट्री का भी एक लेसन हुआ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। तो ये अल्फ़ाबेट जो फ्रांस के अल्फ़ाबेट्स हैं वो वर्णमाला के उन्होंने सारे अक्षर बेबीज छोटे बच्चों से रिपीट करवाए, प्रैक्टिस करवाई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल। तो बैक बेंचेस पे जो विलेज एल्डर्स बैठे हुए हैं उनमें से जो ओल्ड हाउजर है उसने अपना चश्मा लगा लिया था, और वह भी छोटे बच्चों के साथ में वो बा बे बी बो बू पढ़ रहे थे, रिपीट कर रहे थे, लेकिन वो साथ में रो भी रहे थे। यस, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से प्राइमरी क्लास की वो किताब पकड़े हुए हैं, पहाड़ा पकड़े हुए हैं, और उन लेटर्स को स्पेल कर रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। तो ओल्ड हाउजर रो भी रहे थे, और रोते हुए उनकी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही थी, काँप रही थी इमोशंस के कारण। It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. तो उनको इस तरह से, ओल्ड हाउजर को इस तरह से बा बे बी रिपीट करते हुए सुनना और कांपते हुए रोते हुए आवाज़ में, उससे बाकी लोगों का, फ्रेंच का हंसने का भी मन हुआ और रोने का भी मन हुआ। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। तो वह जो लास्ट लेसन था फ्रेंच को बहुत ही ज़्यादा याद रह गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजलस। तो उसके बाद में जब 12 बज गए तो चर्च क्लॉक, जो चर्च की घंटियाँ बजने लगी और 12 बजने का संकेत होने लगा। देन द एंजलस रोमन कैथोलिक प्रेयर होती है, वो चर्च में होने लगी, उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज। तो जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनकी ट्रम्पेट यानी कि उनकी जो वाद्य यंत्रों की आवाज़ आने लगी, जो कि अपनी ड्रिल से, प्रैक्टिस से, रिहर्सल